Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 5.8 Domain Name System DNS Learning Outcomes. After watching this video, you will be able to state the term DNS, state the classification of DNS and describe the working of DNS. Course outcome that is going to map by this unit is CO5, that is configure the network component and assign IP address. And program outcomes that are going to map by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools and experimentation and testing, PO6 project management, PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic IPv4 and IPv6 address space and packet structure or address structure. Then let us see what is DNS. DNS stands for Domain Name System. So DNS is an application layer protocol. So DNS is one of the protocol and it is the application layer protocol, and it defines how the application processes running on different system pass the messages to each other. Okay. तो सपोज हमने हमारे सिस्टम से एक मेल सेंड किया दूसरे सिस्टम में, तो हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन है या जो भी ऐप उसके लिए हम यूज कर रहे हैं और दूसरे सिस्टम पे जहाँ पे वो मेल रिसीव होने वाला है वो ऐप, ये दोनों एप्लीकेशंस किस तरह से रन होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स पे और किस तरह से मैसेजेस सेंड करते हैं उसकी प्रोसीजर ये डोमेन नेम सिस्टम जो है प्रोटोकॉल डीएनएस प्रोटोकॉल ये हमको डिफाइन करता है. मीन्स हाउ द एप्लीकेशन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स पे सेम एप्लीकेशन है लेकिन उनके टास्क डिफरेंट है, एक सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है. तो किस तरह से उन दोनों के बीच में मैसेजेस पास होते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है हमारा डीएनएस डिफाइन करता है. सो डीएनएस इज अ डायरेक्टरी सर्विस that provides a mapping between the name of a host on the network and its numerical address. So DNS is a directory service. Suppose it is just like a telephone directory. Okay. So पहले के ज़माने हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, या nowadays you can consider your contact list of mobile. हमारे मोबाइल में जैसे contact list होती है तो we can say that list is a directory. That list is a directory and it stores particular name of the person and particular phone number of that person. Okay, so DNS is just like that. It stores the name of the name of the host and as well as it converts numerical address for that IP address. Means it stores the IP address for that particular host name. Okay, so DNS एक directory जैसा है जिसमें host name store होता है और host नेम को कन्वर्ट नेटवर्क में जाने के बाद कन्वर्ट करने के बाद कौन से न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में वो कन्वर्ट होता है, वो एड्रेस ये दोनों स्टोर होते हैं. सो इट इज अ डायरेक्टरी सर्विस विच प्रोवाइड्स मैपिंग बिटवीन द नेम. मीन्स ये नेम किस एड्रेस से बिलोंग करता है, इन दोनों के बीच में मैपिंग जो है वो डीएनएस करवाता है. सो डीएनएस इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट, और हमारे यहाँ पे इंटरनेट की फंक्शनिंग होने के लिए DNS is required. Each node in a tree has a domain name and a full domain name is a sequence of symbols specified by dots. अब डोमेन नेम्स को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ट्री स्ट्रक्चर यूज होता है. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्री स्ट्रक्चर यूज होता है, पहले रूट डायरेक्टरी, देन दूसरी डायरेक्टरी, देन तीसरी डायरेक्टरी. इस तरह से वो जो जेनेरिक टर्म्स है वो चलते जाते हैं. इसी तरह से डीएनएस भी एक डीएनएस के लिए भी एक ट्री होता है जिसमें बहुत सारे डोमेन नेम स्टोर्स होते हैं और उनकी हियरार्की जो है हम देख सकते हैं. सो फुल डोमेन नेम अगर हम देखेंगे तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड डॉट्स. सो कुछ सिंबल्स रहेंगे उसमें एंड दो सिंबल्स आर स्पेसिफाइड बाय डॉट्स, सेपरेटेड बाय डॉट्स. सो DNS is a service that translate the domain name into IP address. Okay, so जो भी डोमेन नेम है, हमारा होस्ट नेम है, डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए ये DNS की सर्विस यूज होती है. This allows the users of networks
to utilize user-friendly names when looking for other hosts instead of remembering the IP address. Okay, so हमको ये जो DNS की सर्विस है अलाउ करती है कि अपने हिसाब से यूजर फ्रेंडली जो भी नेम्स हैं वो हमारे होस्ट के लिए हम दे पाते हैं। और अगर हम कुछ IP एड्रेसेस प्रोवाइड करते तो IP एड्रेस को रिमेम्बर करना इज नॉट इजी टास्क। इसमें बहुत सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं और 128 बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। तो एक दो चीज के लिए हम उसको रिमेम्बर कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क में तो इतने सारे होस्ट होते हैं, उन सबका IP एड्रेस हम किस तरह से याद रखेंगे, वो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। ओके, सो इसलिए यूजर अपने हिसाब से नोड को कोई भी नेम दे सकता है, यूजर फ्रेंडली नेम दे सकता है एज पर द एप्लीकेशन और एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड देन उस नेम को हम उस पर्टिकुलर IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं या मैप करते हैं। ओके, सो अगर हमको गूगल की साइट यूज करनी है, ओके, लेकिन गूगल के साइट का अगर हमको किसी ने बोला कि IP एड्रेस याद रखो, तो एवरी टाइम वी गो फॉर गूगलिंग एंड एवरी टाइम अगर हमको वो IP एड्रेस ऐड करना पड़ेगा और IP एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। इसलिए हम क्या करते हैं, जो गूगल है उसका जो होस्ट नेम है या फिर उसका जो साइट है www.google.com, ये याद रखते हैं और उसी के थ्रू हम गो फॉर गूगलिंग। ओके, सो दिस इज हाउ DNS resolves our difficult task. For example, suppose the FTP site at EduSoft had an IP address. So फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल साइट पे EduSoft नाम की एक कोई साइट है, ओके, वेबसाइट है जिसका IP एड्रेस इतना बड़ा है। ओके, एंड मोस्ट पीपल वुड रीच दिस साइट बाय स्पेसिफाइंग ftp.edusoft.com। तो यही नेमिंग कन्वेंशन यूज करके, होस्ट नेम या साइट नेम यूज करके हम इस साइट पे जाते हैं बार बार, ना कि ये एड्रेस हम याद रखते हैं। ओके, सो DNS हमको यूजर फ्रेंडली नेम्स देने के लिए अलाउ करता है। Therefore, the domain name is more reliable than IP address. तो इस तरह से हम डोमेन नेम देंगे, यूजर फ्रेंडली नेम्स देंगे हमारे होस्ट को, ओके, और अपना काम जो है वो इजी करेंगे। Then classification of DNS. So DNS is divided in 3 types. First is generic domain, second is country domain and third is inverse domain. Then इसके नीचे भी कुछ रूट होते हैं या फिर डायरेक्टरी सर्विस होते हैं, ट्री लेवल स्ट्रक्चर होता है ये भी। तो इसके इनवर्स डोमेन के भी कुछ जेनेरिक टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स, बट दीज आर ऑफ इम्पॉर्टेंट। सो दीज 3 टाइप्स आर ओनली इम्पॉर्टेंट टू अस: generic domain, inverse domain and country domain. Now we will see this one by one. Now what are generic domain? It defines the register hosts according to their generic behavior. So जो भी register host है, licensed host है, उनको ये define करता है। Each node in a tree defines the domain name, which is an index to the DNS database. Okay. So इस ट्री में जितने भी नोड है वो डोमेन नेम, सपोज इस ट्री में ये जेनेरिक डोमेन, तो इस ट्री में जितने भी नोड है वो पर्टिकुलर डोमेन नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, ओके, और डिफाइन करते हैं, डोमेन नेम डिफाइन करते हैं, और ये डोमेन नेम acts as an index. Now this domain name जो भी यहाँ पे देंगे इस ट्री स्ट्रक्चर को, ये हम डोमेन देंगे, तो this domain name acts as an index to the DNS database. तो DNS का भी एक डेटाबेस होता है पर्टिकुलर, तो इस इंडेक्स का यूज करके हम बाकी के एड्रेसेस को टैकल कर सकते हैं या बाकी के एड्रेसेस को हम मैप कर सकते हैं। सो सिंपली डोमेन नेम इज एन इंडेक्स टू द DNS डेटाबेस। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन मैं रोल नंबर अगर किसी का रेफर करती हूँ, सो रोल नंबर इज द इंडेक्स एंड यूजिंग दैट इंडेक्स आई कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्टूडेंट इन माई मस्टर और रजिस्टर। ओके, so like that roll number is an index. So like that this domain name is an index, and by this index we can take information or we can retrieve the information from DNS database. It uses 3 character labels and these labels describe the organization type. So 3 characters के label होते हैं, for example .com, .edu, .gov, ये हम सब हमेशा यूज करते हैं
और 3 कैरेक्टर लेबल्स जो होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि ये क्या है. सो दीज आर द 3 कैरेक्टर लेबल्स एंड दीज आर द डोमेन नेम्स. These are the domain names. Okay. So .com that is used for commercial organizations. .edu अगर बोलते तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे हमारे NIT पॉलीटेक्निक का है nitpoly.edu.in, बिकॉज NIT पॉली इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. ओके, इसलिए हमको ये डोमेन नेम दिया है अंडर .edu. ओके. एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो जब भी हम जहाँ पे आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं mahadbt.gov.in. ओके, उसका ये डोमेन नेम होता है. दैट इज बिकॉज दैट इज अ गवर्नमेंट साइट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन साइट. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर दैट पर्टिकुलर वेबसाइट डोमेन नेम हम प्रोवाइड करते हैं. सो कंट्री डोमेन, the format of country domain is same as generic domain, but it uses 2 character country abbreviations. For example, US for the United States in place of 3 character organizational abbreviations. Okay, so country domain is classified country wise according to the country. हम यहाँ पे जिस country के लिए, कोई भी country के लिए 2 character use करेंगे to classify that. Okay, and to show it is a country domain. सो यूएस के लिए .us मीन्स यूएस, इंडिया के लिए IN लाइक दिस. .in लिखते हैं ना हम, gov.in इस तरह से लिखते हैं. तो इन फॉर इंडिया, फॉर गवर्नमेंट इज gov इज योर विच डोमेन, जेनेरिक डोमेन, एंड .in दैट इज योर इंडियन डोमेन. ओके, तो इस तरह से कंट्री डोमेन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. देन इनवर्स डोमेन, द इनवर्स डोमेन इज यूज्ड फॉर मैपिंग एन एड्रेस टू अ नेम. सो अगर हमको एड्रेस पता है अब, देन अगर हमको नेम पता करना है उसका, मीन्स रिवर्स में चलना है. पहले हमारे पास नेम था और हम IP एड्रेस को सर्च करते थे. अब हमको एड्रेस पता है और नेम सर्च करना है, पर्टिकुलर वेबसाइट नेम और होस्ट नेम सर्च करना है. तो इनवर्स ये काम करने के लिए हम इनवर्स डोमेन का यूज करते हैं. When the server has received a request from the client and the server contains the files of only authorized client. So सर्वर सिर्फ ऑथोराइज क्लाइंट्स को ही यहाँ पे या ऑथोराइज क्लाइंट्स की ही रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव करता है, और वो चेक करता है कि पर्टिकुलर क्लाइंट, सबसे पहले रिक्वेस्ट के बाद वो चेक करेगा कि पर्टिकुलर क्लाइंट का नेम ऑथोराइज लिस्ट के क्लाइंट में है क्या. अगर वो नेम एग्जिस्ट करता है देन एंड देन ओनली वो DNS सर्वर उस क्वेरी को एंटरटेन करता है और उसका नेम उसको दे देता है. Okay, so it is a reverse operation of generic domain, like generic domain. So working of DNS. DNS is a client server network communication protocol. DNS client send request to the server while DNS server send responses. So it is simple. DNS client होता है, DNS server होता है. So DNS client query send करता है और DNS server उस query को respond करता है. Client request contain a name which is converted into an IP address is known as forward DNS lookup, while request containing an IP address which is converted into a name known as reverse. Okay, so जब client request send करेगा तो host name के थ्रू या website के थ्रू वो request send करेगा एंड फिर उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाएगा. इस प्रोसेस को फॉरवर्ड DNS बोलते हैं. ओके, और फॉरवर्ड लुकअप्स बोलते हैं. एंड डिफरेंट वे की रिक्वेस्ट अगर IP एड्रेस के फॉर्म में आई है देन then that request is converted into name, means that IP address is converted into again name of the host or name of website. So that is called reverse DNS lookups. So DNS implements a distributed database to store the name of all the hosts on the internet. जैसे कि हमने बोला था DNS database होता है. So DNS distributed database, this is the name of that database which stores all the information of host names, website names and addresses. So if a client like a web browser send a request containing a host name, then sends a query and host name. So अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो DNS सर्वर उस क्वेरी को रिजॉल्व करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है. ओके, लेकिन डज नॉट कंटेन IP एड्रेस. लेकिन अगर DNS सर्वर को उसका IP एड्रेस नहीं मिल रहा है लिस्ट में तो उस क्वेरी को वो रिप्लाई नहीं करेगा या फिर कुछ एरर मैसेज देगा. ओके, सो दिस इज द working of DNS. So let us summarize today's lecture. What is DNS? Today we have studied what is DNS, how DNS is classified and
how is working of DNS.